Hey students, welcome again. Today we will discuss our third chapter, Ranga's marriage. Ranga's marriage is a humorous story of a village boy who has come back from after studying in the city. Ranga's marriage story is written by Masti Venkateshwara Iyengar. I will show you the picture of the narrator Masti Venkateshwara Iyengar. Now, I will show you some major characters of this chapter. You can write down the major character in your fair notebook. First character is Shama, the narrator. Shama, the narrator. The narrator lives in Hosahalli village. Second character is Ranga, son of the village accountant. Third character is Ratna, Rama Rao niece. And fourth character is Sastriji. Next, these are the major characters. Now I show you so that you can learn easily the characters of this chapter. He is Shama, the narrator of the story. He is Ranga, the boy who go to city for studying. He is Ranga's father and he is accountant also. She is Ratna, Rama Rao niece. There are two homonyms. Homonyms are there. First, niece and second one is nice. This is niece means भतीजी और nice means होता है अच्छा. तो दोनों जो वर्ड्स हैं इनमें डिफरेंस है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज शास्त्री, विलेज एस्ट्रोलॉजर. दिस इज अ होसाहाली विलेज. वी कैन सी हियर. दिस इज होसाहाली विलेज. नाउ I show you again the characters, then we will start the summary of this chapter. Shastri, village astrologer. Ratna, Rama Rao niece. Ranga's father, accountant. Ranga. Shama, narrator here. These are the characters. Now we will start the summary. Now we will start summary. होसाहली is a village in मैसूर. होसाहली जो है वो मैसूर का एक गांव है. अभी मैंने आपको दिखा दिया था जो विलेज था वो. The village accountant was the first one who had sent his son. और जो विलेज का जो अकाउंटेंट है वो पहला ऐसे व्यक्ति होता है जो अपने बेटे रंगा को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजता है. रंगा टू बेंगलोर फॉर स्टडीज. पढ़ाई के लिए अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था जिसने. तो पहला व्यक्ति था जो कि अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज पाया था. व्हेन द बॉय केम बैक होम आफ्टर 6 months देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन द विलेज. जब रंगा जो है वो 6 महीने के बाद वापस लौटता है अपने गाँव में तो पूरे के पूरे गाँव में एक एक्साइटमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो बन जाता है. People rushed to his village saying, "Come, Ranga is here. Let's go and have a look." लोग यह कहते हुए उसके घर की तरफ दौड़ रहे थे कि चलो रंगा आ गया है, आओ चले उसे एक नज़र देखें. Seeing so many people in the courtyard, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को अपने आंगन में देखकर रंगा जो है वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आता है. Everyone was surprised
to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. हर कोई देखकर हैरान हो जाता है कि रंगा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह 6 महीने पहले था। इट मीन्स क्या कि सबको लगता है कि शायद रंगा जो है वो इंग्लिश सीख के आएगा तो पूरी तरह से फिजिकली बदल जाएगा, लेकिन सब लोग देखते हैं कि रंगा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कैसा? When he had first left the village, जब वो पहली बार गांव छोड़कर गया था तो जैसा तब था बिल्कुल ऐसा ही अभी भी है। An old lady who was near him ran her hand over his chest. एक जो बूढ़ी महिला है वो उसके पास आती है और उसकी छाती पर अपना हाथ फेर के देखती है। Looked into his eyes and said, उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, The जनेवा is still there, कि जनेऊ अभी भी मौजूद है। जनेऊ क्या होता है? एक शेकर्ड थ्रेड होता है, यानी कि एक हम कह सकते हैं क्या कि एक पवित्र धागा जो स्पेशली जो ब्राह्मण लोग हैं वो धारण करते हैं, तो उसको हम जनेऊ बोलते हैं। He has not lost his caste. जो बूढ़ी महिला है वो कहती है कि इसका मतलब उसने अपना धर्म भ्रष्ट नहीं किया है। She went away soon after that. उसके तुरंत ही बाद वो महिला इतना कहकर वहां से चली जाती है। रंगा laughed. रंगा उन सभी को इस तरह से देखकर हंसता है। Once they had realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose. They all mattered away slowly. और उसके बाद जब सभी लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि रंगा के हाथ, पैर, आंखें, नाक अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, तो धीरे धीरे वे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मेल्टेड वैसे होते जो है पिघलना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्राउड का धीरे धीरे कम हो जाना। बट द नरेटर कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर। लेकिन जो नरेटर है, नरेटर कौन है यहाँ पे? यस, श्यामा जो है वो नरेटर है। अभी जब मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये कौन है? श्यामा है, नरेटर है जो कि स्टोरी के। तो जो नरेटर हैं वो अभी भी वहीं पर खड़े हुए रहते हैं। एंड आस्क्ड, और फिर पूछने लगते हैं, हाउ आर यू रंगप्पा, कि रंगा तुम कैसे हो? रंगा डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली एंड सेइंग, रंगा जो है वो बड़े आदर से उसे नमस्कार करता है और बोलता है श्यामा को कि आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे यूजुअली हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ही बेंट लो एंड टच्ड द नरेटर्स फीट, उसके बाद जैसा हमारे कल्चर में है वो झुकता है और अपने बड़े यानी कि जो नरेटर है, नरेटर कौन? श्यामा जो है उनके पैर छूता है। मे यू गेट मैरिड सून सेड द नरेटर, और जो नरेटर है यानी कि श्यामा जो है वो रंगा को आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है? कि भगवान करे कि तुम्हारा जल्द ही विवाह हो जाए। आफ्टर ए लिटिल प्लीजेंट टॉक ही लेफ्ट द प्लेस, और थोड़ी देर इसी तरह से हंसी मजाक करने के बाद जो नरेटर है श्यामा है वो वहाँ से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून when the narrator was resting, Ranga came to his house with a couple of oranges in his hand. और उसके बाद जब उस दिन के दोपहर की बात होती है, जब नरेटर अपने घर पे आराम कर रहा था तो रंगा अपने हाथ में कुछ संतरे लिए उसके घर आया। For a while they talked about this and that, कुछ देर के लिए वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। Then the narrator said, रंगप्पा when do you plan to get married? और उसके बाद नरेटर ने यानी कि श्यामा ने रंगा से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कि रंगा तुम्हारा विवाह कब करने का विचार है? I am not going to get married, he said. रंगा ने कहा कि मैं विवाह नहीं करने वाला हूँ। Why not? कि जो श्यामा है वो पूछते हैं क्यों नहीं? I need to find the right girl. If once get married, it should be to a girl who is mature. कि मुझे सही लड़की की तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि मनुष्य विवाह करना चाहता है तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो। That's why I am not marrying now. और यही वजह है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, और यदि किसी को इस तरह की जो है मैच्योर लड़की नहीं मिलती है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यानी कि जो रंगा है, रंगा कहता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि उसे कुंवारा ही रहना चाहिए। इज देयर एनी अदर रीज़न, कि क्या कोई और कारण भी है? A man should marry a little girl. A man should marry a girl he admires. एक आदमी को उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिससे वह पसंद करता है।
हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन हर फेस। और कैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि उसके चेहरे पे, जो लड़की के चेहरे पे यदि अभी भी दूध के दाग दिखाई देते हैं, तो कैसे वो ऐसी लड़की से कोई शादी कर सकता है। और वन ए यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और कैसे कोई ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जिसे कि अभी शर्माने के बारे में, नाजुकता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इट मीन्स क्या कि जो लड़की है वो पूरी तरह से मैच्योर होनी चाहिए। यदि एक इमैच्योर गर्ल है तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। वन से नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड। और श्यामा कहता है कि हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। और रंगा हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही बात है। द नरेटर हैड थॉट दैट रंगा वुड मेड ए गुड हस्बैंड फॉर एनी गर्ल। नरेटर का यह सोचता था कि रंगा किसी भी लड़की के लिए एक बहुत अच्छा पति साबित हो सकता है। बट नाउ ही वॉज डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड दैट द बॉय हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। लेकिन जब वह यह देखता है कि जो रंगा है उसका इस तरह का विचार है, तो वह बहुत निराश हो जाता है कि इस लड़के ने तो कुंवारा रहने का निर्णय कर लिया था। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। और थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा जो है वो वहाँ से चला गया। नरेटर मेड अप हिज माइंड राइट देन दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड। और जो हमारे नरेटर हैं श्यामा हैं, उन्होंने उसी समय पे अपना मन बना लिया कि वो रंगा का विवाह करवा कर ही रहेंगे। देयर वॉज वन रामा राव इन द विलेज। उस गांव में रामा राव नामक एक व्यक्ति था। कौन से गांव में? यस, हम बात कर रहे हैं इसी गांव की, मीन्स होसाहली गांव की हम लोग बात कर रहे हैं। तो होसाहली गांव में, इसी गांव में जो एक घर था, यहाँ पे होसाहली में एक घर और किसका था यहाँ पे? तो रामा राव का भी एक घर यहाँ पे था। नेक्स्ट, he had a nice niece who was a pretty girl of 11। और 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की उसकी भतीजी थी। हर नेम वॉज रत्ना, और उसका नाम रत्ना था। ये जो है ये रत्ना है, जो कि क्या है? रामा राव की भतीजी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। उसके माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी। रामा राव हैड ब्रॉट हर टू लिव विद हिज फैमिली। इसलिए रामा राव जो है वो उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले आया था। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन। जो रत्ना है वो एक बड़े शहर से आई थी। एंड शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम। और वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है, यानी कि वीणा और हारमोनियम बजाना उसे आता था। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस। उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। द नरेटर थॉट दैट रंगा वॉज द मोस्ट सुटेबल बॉय फॉर हर। और जो हमारे नरेटर हैं श्यामा, उनका सोचना ऐसा था कि रंगा उसके लिए बिल्कुल एकदम सही लड़का साबित होगा। एंड रत्ना वॉज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा। और जहाँ तक अगर रत्ना की बात है तो रंगा के लिए रत्ना भी सबसे जो है सही साबित होगी। सो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू देयर हाउस एंड सेड टू रामा राव's वाइफ। इसलिए अगले ही दिन सुबह जो हमारे नरेटर है वो रत्ना के घर पे जाते हैं और रामा राव की पत्नी से बोलते हैं, I will send some buttermilk for you. What do you mean by buttermilk? Yes, write down this word meaning in comment box. आप इस शब्द का जो अर्थ है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताएंगे। I will send some buttermilk for you. आस्क रत्ना टू फैच इट। कि मैं जो है तुम्हारे लिए थोड़ा सा बटर मिल्क भिजवा दूंगा और रत्ना से कहना कि इसे ले आए। रत्ना वहाँ पे आती है। शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी। उसने उस दिन बहुत ही एक शानदार साड़ी पहनी हुई होती है।
द नरेटर टोल्ड हर टू सिट इन हिज रूम। जो नरेटर है श्यामा, वो उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहते हैं। ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। और वो रत्ना से कहते हैं कि वो एक उन्हें गाना सुनाए, यानी कि गाना गाने की उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ही सेंट फॉर रंगा ऑल्सो। साथ में जो हमारे श्यामा हैं, उन्होंने क्या कि नरेटर को भी जो है अपने घर पे बुलवा लिया था। सेंट फॉर जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। यस, सेंट फॉर जो है वो, सेंट फॉर का मीनिंग होता है किसी को बुलाना। और यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि जब भी कभी भी किसी भी वर्ब के साथ में यदि प्रीपोजिशन लग जाता है तो वो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे सेंट जो है वो की एक वर्ब है और फोर जो है वो प्रीपोजिशन है। अगर हम इसका जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हैं तो सेंट का मतलब भेजना और फोर मतलब के लिए, यानी कि भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ भेजने के लिए नहीं होगा। यदि वर्ब और उसके साथ में यदि प्रीपोजिशन आ जाती है तो दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। मीन्स क्या कि यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब बन जाती है और फ्रेजल वर्ब बनने के बाद उनका जो अर्थ है वो बदल जाता है। अब यहाँ पे उसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा कि बुलवाना होगा। वाइल शी वॉज सिंगिंग, यहाँ पे शी जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए, रत्ना के लिए। और जब रत्ना गा रही थी, रंगा रीच्ड द डोर, रंगा जो है वो घर के दरवाजे के पास जो है वो पहुंच जाता है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, लेकिन जो रंगा है वो वहीं दहलीज के ऊपर रुक जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप। अब वो दरवाजे की दहलीज पे रुक क्यों जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो अंदर जाए और गाना गाना बंद हो जाए, यानी कि गाने में किसी भी तरह की रुकावट वो नहीं डालना चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ की जो मालिक है उसको वो देखना चाहता था। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ी सावधानी से उसने अंदर की ओर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जैसे कमरे में बाहर से रोशनी आती है और अगर कोई झांक के देखता है तो क्या होगा कि जो अंदर कमरे में आने वाली रोशनी है वो एकदम से अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। और जैसे ही जो अंदर आने वाली जो लाइट है वो क्या होती है, अंदर आने वाली जो रोशनी है वो बंद हो जाती है। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एट वॉन्स स्टॉप्ड, रत्ना ने जो है ऊपर की तरफ देखा और एक अजनबी को वहां देखकर वह एकदम से गाना उसने बंद कर दिया। रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन शी स्टॉप्ड हर सिंगिंग, रंगा जो है वो बड़ा निराश होता है जब रत्ना जो है वो गाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो सिंगर है वो डिस्टर्ब हो, लेकिन ऐसा हो गया है। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, और उसके बाद रंगा ने जो है उसे किससे, श्यामा से पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, और उसके घर के अंदर आता है और कुर्सी पर जो है श्यामा की जो चेयर है वहाँ पर वो बैठ जाता है। कौन, रंगा। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ी हुई रहती है। विद हर हेड लोवर्ड, अपना सिर झुकाए हुए। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, दोनों में से कोई भी, यानी कि दोनों कौन, यहाँ पे रंगा और जो श्यामा है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, मेरे आने से ही गाने में जो रुकावट है वो पड़ गई थी। एंड लेट मी लीव सेड रंगा, उस लड़के ने यानी कि रंगा ने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ये बात किसने कही, रंगा ने कही। बट देवर मियर वर्ड्स, लेकिन ये मात्र शब्द थे, यानी कि सिर्फ प्रीटेंशन के तरीके से बोले गए थे। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, लड़का कह तो रहा था कि वह चला जाएगा लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिला था। जैसे फॉर्मली हम स्ट्रीट्स में देखते हैं जो विमेन है वो आपस में बात करती रहती हैं और एक कहेगी ठीक है मैं जाने वाली हूँ, जा रही हूँ, और उसी टाइम पे बोलती रहेगी 10-15 मिनट से लेकिन जाएगी नहीं। तो इसी तरह से जो रंगा है वो कह रहा है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, लेकिन उसके शब्द मात्र शब्द थे, यानी कि वो वहां से हिल तक भी नहीं रहा था। रत्ना रैन इनसाइड ओवर बाय शाइनेस, रत्ना शर्मा कर अंदर भाग गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, और उसके बाद जो
रंगा है वो पूछता है क्या कि स्वामी ये लड़की कौन थी। स्वामी यहाँ पे यूज हुआ है किसके लिए, श्यामा नरेटर के लिए। वट डज इट मैटर टू आइदर फॉर अस हु शी इज, सेड द नरेटर। और जो हमारे नरेटर है श्यामा, उन्होंने कहा कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है। क्यों, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड वी आर नॉट मैरिंग, कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और तुम विवाह करने में रुचि नहीं रखते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन थी। शी इज़ नॉट मैरिड देन, रंगा आस्क्ड वेरी होपफुली। तो रंगा ने जो है वो बड़ी रुचि दिखाते हुए बड़ी आशा के साथ में पूछा, तो फिर वह विवाहित नहीं है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है। शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो, उसकी शादी जो है, श्यामा जो है वो बताता है कि उसकी शादी जो है वो 1 साल पहले हो गई थी। ये यहाँ पे उसका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो रत्ना है उसकी शादी नहीं हुई होती है। रंगा's फेस श्रिवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, रंगा का चेहरा एक भुने बैंगन की तरह से मुरझा जाता है। ही लेफ्ट आफ्टर ए वाइल सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, और उसके बाद कुछ देर के बाद मैं वहाँ से चल पड़ा, यह कहते हुए कि मुझे चलना चाहिए, मुझे घर पर कुछ काम है। द नरेटर वेंट टू द विलेज शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड सेड टू हिम, अगली सुबह जो नरेटर है वो शास्त्री के पास गया और उसने बोला, क्या, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर, ग्रहों का अध्ययन करने के लिए सब कुछ तैयार रखना। शास्त्री के पास वो जाता है, ये हैं हमारे शास्त्री जी, ठीक है, जो कि होसाहले गांव के एक तरह से हम कह सकते हैं कि विलेज शास्त्री हैं ये, ठीक है, होसाहले गांव के शास्त्री हैं। तो इनके पास जो नरेटर है श्यामा, वो जाते हैं इनके पास में मॉर्निंग में और इनको कहते हैं कि सभी जो भी आपको ग्रह वगैरह पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप क्या करके रखें, अपने पास में सभी चीज़ें रखें। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। ही टोल्ड द शास्त्री ऑल दैट ही वॉन्टेड हिम टू से, उसने शास्त्री को वो सब सिखला दिया था जो वह उससे बुलवाना चाहता था। द नरेटर मेट रंगा इन द आफ्टरनून, और जो नरेटर है वो दोपहर के बाद उस दिन दोपहर के बाद जो नरेटर है वो रंगा से मिला एंड फाउंड नो चेंज इन हिम, और उसे रंगा में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। बट ही सेड, लेकिन फिर वह बोला, व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, हालांकि कोई उसे जो है चेंज नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर, श्यामा ने जो है वो रंगा से कहा कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कि तुम विचारों में खोए हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। द नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी, और जो रंगा है वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, श्यामा कहता है कि मुझे लग रहा है शायद तुम्हारे सिर में दर्द है, आओ चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम ओके, और जो रंगा है वो बोलता है कि नहीं मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द सेम वॉज द केस विद मी व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, और श्यामा जो है वो उसको बोलता है टीच करते हुए कि देखो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था जब मेरे लिए लड़की चुनने का समय हो रहा था। बट आई डो नॉट थिंक इट कुड बी द रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हारी जो अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है उसका कारण यह हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट द नरेटर, रंगा जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर श्यामा की तरफ देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, अब चलो हम चलते हैं, सेड द नरेटर, श्यामा जो है वो कहता है कि चलो आओ शास्त्री के पास चलें। ही विल टेल अस वेदर शुक्र और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि चलो चलकर हम लोग पता लगाते हैं
कि शुक्र और शनि तुम्हारे हित में हैं या नहीं, यानी कि ग्रह नक्षत्र जो है वो तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। रंगा अकम्पेइंग द नरेटर विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा बिना किसी विरोध के नरेटर के साथ चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री saw them, he exclaimed, "What a surprise! Have not seen for you a long time." और जैसे ही शास्त्री ने उन दोनों को देखा वह जोर से बोला, वाह बड़ा ताजुब है, बहुत देर हो गई तुमसे, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया। Then he turned to Ranga and said, "When did the young son of our accountant come home?" कि उसके बाद फिर वो रंगा की तरफ मुड़ा शास्त्री और उसने कहा कि हमारे अकाउंटेंट का जवान लड़का कब घर आया है। What can I do for him? It's very rarely that he visited us. मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यह तो कभी कभार ही हमारे घर आता है। Take our पंचांग, our रंगप्पा seems to have something on his mind. अपना पंचांग निकालो, ऐसा लगता है कि हमारे रंगप्पा के दिमाग पे कोई बोझ है। Can you tell us what's worrying him? क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या बात परेशान कर रही है? Today we shall put your science of astrology to the test. आज हम आपके ज्योतिष विज्ञान की परीक्षा लेंगे। ये सारी की सारी बातें जो है वो कौन बोलता है? यहाँ पे ये सारी बातें श्यामा के द्वारा, नरेटर के द्वारा बोली जाती हैं। शास्त्री took out कौड़ीज एंड अ बुक। शास्त्री जो है वो अपनी कुछ कौड़ियाँ जो पासे हैं वो निकालता है, किताब निकालता है। He moved his lip fast as he counted on his finger. उसके बाद वो बड़े तेजी से अपने होठों को हिलाता है और अपनी उंगलियों पर कुछ गिनता है। What's your राशि? और फिर पूछता है कि तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा जो है इसके बारे में नहीं जानता था, रंगा को अपनी राशि के बारे में नहीं पता था। नेवर माइंड, शास्त्री सेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड। और उसके शास्त्री ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं। He did some more calculations and then said in serious tone, "It's about a girl." और उसके बाद उसने कुछ और कैलकुलेशंस करी और उसके बाद बड़े सीरियस टोन में, बड़े गंभीर स्वर में उसने बोला कि यह एक लड़की के बारे में है। द नरेटर बीइंग कंट्रोलिंग हिज लाफर, नरेटर जो है इस पूरे समय के दौरान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए था। क्यों? क्योंकि वो जो शास्त्री है वो सारी की सारी बातें वही बोल रहा था जो कि कुछ देर पहले श्यामा उसको समझा कर गया था। बट नाउ ही बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब जो श्यामा है वो जोर जोर से हंसने लगता है। ही टर्न टू रंगा एंड सेड, उसके बाद वो रंगा की तरफ मुड़ता है और बोलता है, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड थॉट, हु इज दैट गर्ल, कि बिल्कुल वही बात है जो मैंने सोची थी, और वो लड़की है कौन। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने उत्तर देने से पहले थोड़ी देर सोचा, एंड बिफोर रिप्लाइंग, और फिर बोला, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, कि शायद उसका नाम समुद्र में पाई जाने वाली किसी चीज के जैसा है। कमला, सेड द नरेटर, कि नरेटर श्यामा ने पूछा कि क्या उसका नाम कमला हो सकता है, क्योंकि कमल जो है वो समुद्र में पाया जाता है। मे बी, हो सकता है, शास्त्री ने कहा। इफ इट इज़ नॉट कमला इट वुड बी रत्ना, और उसके बाद जो शास्त्री है वो बोलता है कि शायद यह कमला नहीं हो तो यह रत्ना भी हो सकती है। रत्ना, एक्सक्लेम्ड द नरेटर, द गर्ल इन रामा राव's हाउस इज रत्ना, और उसके बाद जो नरेटर है वो जोर से बोल पड़ता है, रत्ना, रामा राव के घर पर रहने वाली लड़की रत्ना है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, कि मुझे बताइए कि क्या उनसे बातचीत चलाने का कोई फ़ायदा, कोई फल निकलेगा। डेफिनेटली, ही सेड, आस्क्ड थिंकिंग फॉर सम टाइम, और कुछ देर सोचने के बाद शास्त्री बोला कि अवश्य ही इसका जो है ये जो तुम्हारा काम होगा ये सफल होगा। देयर वॉज सरप्राइज एज वेल एज हैप्पीनेस ऑन रंगाज फेस, और रंगा के चेहरे पर हैरानी के साथ प्रसन्नता भी थी।
बट दैट गर्ल इज मैरिड सेड द नरेटर। लेकिन उसके बाद जो नरेटर है श्यामा है वो कहता है कि लेकिन वो लड़की तो विवाहित है, यानी कि उसकी शादी तो हो रखी है पहले से ही। देन ही टर्न टू रंगा एंड सा हिज फेस हैड फॉलन। और उसके बाद जैसे ही वो रंगा के चेहरे की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि हाँ, उसका जो चेहरा है वो दोबारा से मुरझा गया था। आई डू नॉट नो ऑल दैट सैड शास्त्री। शास्त्री ने कहा कि मैं वह सब नहीं जानता। देर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल। कोई और लड़की भी हो सकती है जो उपयुक्त होगी। आई ओनली टोल्ड यू दैट अवर शास्त्रा सेज। मैंने तो तुम्हें सिर्फ वही बताया है जो हमारा शास्त्र कहता है। Both of them left the place. On the way they passed by Rama Rao's house. और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में वे रामा राव के घर के पास से निकले। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। रत्ना वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। द नरेटर वेंट इन अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर। जो नरेटर है श्यामा वो रामा राव के घर के अंदर गया और एक ही मिनट में बाहर आ गया। सरप्राइजिंग ही सेड टू रंगा, कि हैरानी की बात है। वो उसको आकर बताता है कि कितनी हैरानी की बात है। उसने रंगा से कहा दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड। यह लड़की जो है वो विवाहित नहीं है, इसकी शादी नहीं हो रखी। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। किसी दिन किसी ने मुझे बताया था कि वह शादीशुदा है। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। आखिर जो शास्त्री ने हमें बताया था वह सब सच ही निकला। बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। उसके बाद जो नरेटर है श्यामा वो पूछता है कि रंगा मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उसके बारे में ही सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ गॉड एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। और उसके बाद जो श्यामा है वो रंगा से कहता है कि भगवान की सौगंध खाओ, मुझे बताओ कि जो शास्त्री ने कहा है क्या वह सच था। Ranga at once admitted, there's great truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. रंगा ने एकदम से इस बात को स्वीकार कर लिया कि शास्त्र में उससे भी कहीं बड़ा सच छुपा है जितनी की हम कल्पना करते हैं। What he said is absolutely true. उसने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच था। शास्त्री was at the well when the narrator went there that evening. जब शाम को जब हमारा जो नरेटर है श्यामा है वो शास्त्री से मिलने गया तो उस समय पे वह कुएं के पास था, कुएं के ऊपर था। He said, शास्त्री जी you repeated everything I had taught you without giving rise any suspicion. कि शास्त्री जी आपने बिना कोई संदेह उत्पन्न किए सब कुछ दोहरा दिया जो मैंने आपको सिखाया था। What a marvelous शास्त्र yours is. आपका शास्त्र कितना चमत्कारी है। रंगा had come the other day to invite the narrator for dinner. अब ये काफ़ी समय पहले की बात है, यानी कि फ्लैशबैक की जो बातें हैं वो चल रही थी। अब प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो स्टार्ट होती है। रंगा जो है वो कुछ दिन पहले नरेटर के घर के पास में उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए आया था। व्हाट द ओकेजन ही आस्क्ड। तो इसके ऊपर जो नरेटर है उसने पूछा कि क्या ओकेजन क्या है, यानी कि अवसर क्या है, क्या उपलक्ष्य है जिसके रूप में मुझे डिनर पे बुलाया जा रहा है। इट्स श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3। और जो जो रंगा है वो बताता है कि आज श्यामा का जन्मदिन है और वह 3 साल का हो गया था। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा सेड द नरेटर, क्योंकि नरेटर का नेम भी क्या है, श्यामा है। और जो बच्चा है 3 साल का उसका नाम भी क्या है, श्यामा है, जो कि बच्चा है किसका, रंगा और जो रत्ना है उसका बेटा है। और इस पे जो नरेटर है श्यामा वो कहते हैं कि श्यामा एक बढ़िया नाम नहीं है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच ए नेम, कि तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का ऐसा नाम क्यों रखा है। क्योंकि श्याम जो है वो थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो घोर वर्ण होता है उसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, कि रत्ना और तुम कितने बच्चों जैसे पति पत्नी हो। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ एंड हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। माई सिस्टर हैज़ कम टू हर। द नरेटर वेंट देयर फॉर डिनर। श्यामा रस्ड टू हिम
When the narrator walked in and put his arms round his legs, the narrator kissed on his cheek and placed a ring on his tiny fingers. और वर्णन करता जब रात के समय पे उसके खाने के पास खाने के यानी कि डिनर के ऊपर जाता है, तो घर के अंदर जैसे ही जाता है तो छोटा बच्चा जो श्यामा है वो दौड़कर उसके पास आता है और उसकी टांगों से लिपट जाता है, और जो श्यामा जो नरेटर है वो उसकी उंगलियों में अपनी जो अंगूठी है जो उसके लिए गिफ्ट में लेकर आया था वो उसको पहनाता है। अब मैं आपको कुछ जो नरेटर ने यहाँ पे चैप्टर में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें उसने कुछ चैप्टर में अपने गांव के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं कि कैसे उनके गांव में जो बहुत ही खट्टे आम जो लगते थे, इतने खट्टे थे आम कि एक दिन जो नरेटर है वो बताते हैं कि जो वो आम वो लेकर आए थे और उन्होंने चटनी बनाई थी तो पूरी की पूरी फैमिली को खांसी हो गई थी। ये आम का पेड़ है जो कि उनके होसाहली गांव में जो है वो पाया जाता था। तो इस आम के पेड़ से जब मैंने अभी आपको बताया कि एक दिन नरेटर जो है वो यहाँ से अपने होसाहली गांव में से इस पेड़ पे से एक जो है फ्रूट यानी कि कच्चा जो आम है वो लेकर जाता है, उसकी चटनी बनाते हैं और सभी लोग जो है वो खांसी से पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद नरेटर जो है वो आगे हमें अपने गांव के बारे में बताता है कि उस गांव के जो लोग हैं वो इस तरह से पत्ते पे रख के जो है वो खाना खाते हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक पोंड है उनके गांव में, होसाहली गांव में एक पोंड है और वहाँ पे बड़ी बड़ी बेलें जो हैं वो लगी हुई हैं। उनके जो पत्ते हैं वहाँ पे उन बेलों के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। मीन्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये पोंड है और इस पोंड पे जो बेलें हैं मीन्स अगर दोपहर के समय पे या सुबह के समय पे लोग घूमने के लिए नहाने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से वो कुछ पत्ते तोड़ कर ले आते हैं और दोपहर के समय खाना किस पे परोसा जाए ये सोचने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मेरा नया मेथड आपको कैसा लगा इसको जो है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। इसमें से जो आपको कैरेक्टर्स हैं वो आपको लिखने अपनी नोटबुक में, समरी आपको ध्यान से समझनी है और एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको इसमें से लिखने हैं जो कि 1 वर्ड होंगे।